Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 13, that is lines and angles of part 9. In this video we discussed next topic, that is angles made by a transversal with two parallel lines. In previous video we learned about angles made by a transversal with two lines. Then we discuss on transversal and angles made by them. Here first of all we discuss what is parallel lines. So we know about parallel lines. Parallel lines, if two lines are drawn in a plane such that when both the lines are extended indefinitely in both the directions, they do not intersect. Such lines are called parallel lines. If two lines, अगर दो लाइन्स एक प्लेन में किया हुआ हो ड्रॉन हो, सच दैट इस तरह से ड्रॉन हो, when both the lines are extended indefinitely, दोनों लाइन को हम अनंत तक एक्सटेंडेड करें, उसे बढ़ाएं, इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में उसे इनफाइनाइट तक इंडेफिनिटली निश्चित दूरी तक हम एक्सटेंड करें, उसको बढ़ाएं, तो प्रोड्यूस करें, तो वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी भी जगह नहीं होना चाहिए. सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. तो ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन्स कहते हैं. जैसे फिगर में ये एल लाइन और ये एम लाइन इस डायरेक्शन में भी बढ़ाएंगे तो भी, और इसके पीछे वाले डायरेक्शन में भी बढ़ाएंगे तो भी, दोनों डायरेक्शन में बढ़ाने पर यह एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो ऐसे लाइन को हम पैरेलल लाइन करेंगे. सिमिलरली इस फिगर में भी इस दोनों को बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करने पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा. तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है. लेकिन यहाँ पर इस डायरेक्शन, पीछे वाला डायरेक्शन में अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाने पर, इसको आगे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट कर देगा. ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाएगा. तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल लाइन नहीं है. नाउ come to the topic. When two parallel lines are intersected by transversal, then results are, by measuring all the angles made by a transversal to two parallel lines, we find the following. First, angle 3 is equal to 5 and angle 4 is equal to 6. Now let's understand it from figure. When two parallel lines are intersected by a transversal line, then angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here we see that 3 is equal to 5. 3 और 5 इक्वल होगा मेजर करने पर, और 4 is equal to 6 होगा. It means this 3 and 5 are pair of alternate interior angle. And when we measure angle 4 and 6, these are also equal in measure. So these 4 and 5 pair of angles are alternate interior angles. So pair of alternate interior angles are equal to each other. Now next, for this we draw a figure. Figure is this angle 1, this angle 2, this angle 3, this angle 4, this angle 5, and this 6, 7, and this 8. 1 is equal to 7.
1 is equal to 7. This means 1 and 7 are alternate exterior angle, and 2 and 8. When we measure angle 1 and 7, then we find both are same measure. Similarly, 2 and 8 are of same measure. So pair of alternate exterior angles are equal. Now third, angle 1 is equal to 5. 1 is equal to 5, that is corresponding angle. 2 का corresponding angle 6, 3 का 7 और 4 का 8. Corresponding angle. When we measure pair of corresponding angle, then we find measures of pair of corresponding angle must be equal. So pair of corresponding angles are equal. Now last, angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, and angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree. 4 and 5. These 4 and 5 are interior angles on the same side of transversal line, and these angles are also known as consecutive interior angle and co-interior angle. When measure of these two angles and find the sum of these two, we get 180 degree. Similarly, 3 and 6, the sum of 3 and 6 must be 180 degree. So sum of interior angles on the same side of transversal के same side के interior angle का sum, और उसको दूसरा नाम हम consecutive इंटीरियर एंगल कह सकते हैं और को इंटीरियर एंगल कह सकते हैं. तो को इंटीरियर, कंसेक्यूटिव और ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो 4 कंडीशन होगा जब दो पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल लाइन से कट होगा, इंटरसेक्ट होगा, तो वहां पर 4 तरह के कंडीशन होगा. पहला कि इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का भी पेयर इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होगा, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइन्स. इफ two lines are intersected by a transversal, then two lines will be parallel. If that means parallelism of two lines के लिए कंडीशन, दो लाइन के पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होगा. तो जब if two lines are intersected by a transversal, then the two lines will be parallel. if दो लाइन इंटरसेक्टेड होगा किसी ट्रांसवर्सल लाइन से, तब दोनों लाइन को पैरेलल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होगा. तो टोटल 3 कंडीशन होने चाहिए. 3 में से कोई भी कंडीशन होगा तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन पैरेलल हैं. पहला कंडीशन क्या है, द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल. किसका, तो अल्टरनेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर अगर इक्वल होता है तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, जो ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है. दूसरा कंडीशन है, अगर द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मीन्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और को इंटीरियर एंगल्स, उसका पेयर का सम, उसका पेयर जो है सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री उसका सम होना चाहिए. उस दोनों एंगल कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन में भी दोनों लाइन जो ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो दोनों लाइन जो है पैरेलल होगा. तीसरा कंडीशन है, अगर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर अगर इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल हो गया तो भी हम उस दोनों लाइन को पैरेलल कह सकते हैं.
corresponding एंगल फिर देख लेते हैं एक बार फिर से। ये दो लाइन है, ये अभी हम नहीं जानते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये इसका corresponding एंगल ये होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो भी हम कह सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो भी हम कह सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो भी हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो कोई भी कंडीशन, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर दिखे तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। Thank you for visiting this video. The next concept from this chapter will be continued in the next part of the video.